روم و کلچر آج بھی انفلوئنشل ہے، اس کی فلسفی، اس کے الفاظ، اس کا آرکیٹیکچر آج بھی دنیا میں پاپولر ہے۔ یہ وہ سپر پاور تھا جس نے ہسٹری میں پہلی بار ماڈرن آرمی کی بنیاد رکھی، جس نے امپائر کو چلانے کے لیے پہلی بار سینٹ کا سسٹم بنایا، جس نے اپنے ریپبلک پیریڈ میں تقریباً 5 صدیوں تک ڈیموکریسی کو سکسیسفلی چلایا۔ کتنی ہی ماڈرن پولیٹیکل ٹرمز جیسے کہ ریپبلک، ڈکٹیٹرز، سینٹ اور ویٹو ایسی ہیں جنہیں رومن پولیٹکس سے لیا گیا ہے۔ امپائر کے پیک پیریڈ میں اس کی پاپولیشن اتنی تھی کہ دنیا کا ہر 5واں انسان رومن تھا۔ رومن کینگڈم، ریپبلک اور امپائر کے پیریڈز کو ملا لیا جائے تو کل ملا کر 2000 سال سے بھی زیادہ روم کا ڈومیننس رہا۔ یہ کیسے پوسیبل ہوا؟ اور پھر کیسے اس سپر پاور کا ڈاؤن فال ہوا؟ اور کیوں ہوا؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ روم کی شروعات کے بارے میں بہت ساری میتھولوجیکل سٹوریز آکسٹ کرتی ہیں۔ ایک کہانی کے مطابق 2 جڑواں بھائی تھے، رومولس اور ریمس، جنہیں بچپن میں ندی میں بہا دیا گیا تھا کیونکہ وہ گاڈ آف وار مارس کی ناجائز اولاد تھے۔ لیکن کسی طرح یہ بچے ایک جنگل میں جا پہنچے جہاں پر ان کو ایک بھیڑیے نے دیکھا اور ان کو اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر ٹائبر ندی کے پاس ایک سیٹلمنٹ بنایا، لیکن کچھ سمے بعد شہر کے کنٹرول کو لے کر دونوں کے بیچ لڑائی ہو گئی، جس میں ریمس کی موت ہو گئی اور پھر رومولس نے اس شہر کو روم کا نام دیا۔ ایسی ہی 2-3 اور میتھولوجیکل سٹوریز بھی ہیں روم کی شروعات کے بارے میں، لیکن ماڈرن ریسرچ کے اکارڈنگ یہ سب اس ٹائم کے رومن ہسٹورنس نے اپنے کنگڈم کو ایک لیجنڈری اوریجن سٹوری دینے کے لیے بنائی تھی۔ روم کی اصل شروعات کو جاننے کے لیے ہم نے ماڈرن ریسرچ کو انیلائز کیا اور دیکھا کہ کچھ آرکیولوجیکل ریکارڈز کے مطابق روم 625 BC کے آس پاس اسٹیبلش ہوا تھا۔ شروعات میں یہ ٹائبر ریور کے کنارے ایک چھوٹا سا ٹریڈنگ سینٹر تھا جو دھیرے دھیرے ایک شہر میں بدل گیا۔ اس سمے اس ریجن کو ایٹروریا اور لیٹیم کہا جاتا تھا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ویلیجز میں رہتے تھے اور شاید ان ویزن سے بچنے کے لیے ایک جھٹ ہو گئے جس سے روم کی شروعات ہوئی۔ 600 BC سے 510 BC تک کے پیریڈ کو روم کا پیریڈ آف کنگز مانا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سمے راجہ بننے کا فیصلہ ہیریڈیٹری بیسس پہ نہیں لیا جاتا تھا، کنگز کو سینٹ نام کی رولنگ باڈی الیکٹ کرتی تھی۔ اس پیریڈ کے دوران روم میں کل 7 کنگز بنے۔ اس لسٹ میں آخری راجہ کا نام لوسیس تارکوینس سپربس تھا، جسے تارکوین دی پراوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ہسٹورینز کے مطابق وہ ایک ٹائرنٹ تھا اور پھر ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس نے پورے روم کے اتہاس کو بدل دیا۔ لوسیس سپربس کے بیٹے پر آروپ لگا کہ اس نے ایک نوبل ووموئن لوکریشا کے ساتھ زبردستی کی۔ یہ خبر روم میں آگ کی طرح پھیل گئی اور جگہ جگہ لوسیس سپربس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گئی۔ آخرکار جنتہ اور نوبلز نے مل کر سپربس کو سطح سے ہٹا دیا اور اسی کے ساتھ 509 BC میں روم کے ریپبلک پیریڈ کی شروعات ہوئی۔ روم میں اب ایک گورنمنٹ بنائی گئی جس کو سینٹ کا نام دیا گیا۔ سینٹ کو 2 سیکشنز میں بانٹا گیا۔ ایک سیکشن کا نام پیٹریشنز تھا جس کے ممبرز ریچ اور پاورفل فیملیز سے آتے تھے، اور دوسرا سیکشن تھا پلیبینز جس میں زیادہ تر میڈل کلاس کے ریپریزنٹیٹیوز تھے۔ پیٹریشنز اور پلیبینز مل کر 2 لیڈرز کو الیکٹ کرتے تھے جنہیں کانسلز بلائی جاتا تھا۔ عام طور پر زیادہ تر پاور پیٹریشنز کے پاس ہوتی تھی اور وہ اس چیز کا مس یوز بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا پلیبینز کے ساتھ کئی بار کانفلکٹ دیکھا گیا۔ ریپبلک پیریڈ کے دوران روم کا کافی ایکسپینشن ہوا۔ 338 BC تک روم کی ٹیریٹری پورے اٹالین پیننسولا تک پھیل چکی تھی۔ اس ایکسپینشن کے دوران کئی کانفلکٹس بھی دیکھے گئے، جیسے 390 BC میں پڑوسی کینگڈم گالز نے روم پر حملہ کیا اور کافی تباہی مچائی، لیکن روم نے خود کو دوبارہ بلڈ کیا۔ اس کے بعد ملٹری لیڈر کاملوس کی لیڈرشپ میں روم نے آج کے پورے اٹلی پر قبضہ کر لیا۔ 266 BC سے لے کر 146 BC کے بیچ روم ایک بار پھر یدھ کی سفتی میں چلا گیا۔ اس سمیا کو پیونک وارز کہا جاتا ہے۔ یہ وارز روم اور کارتیج کے بیچ ہوئی تھی۔ کارتیج افریقہ کہ نوردن کوست پر ستت ایک بہت شکتیشالی سٹیٹ تھا جو آج کے ٹونیزیا کے آس پاس کی ریجن میں آتا ہے۔ کل ملا کر 3 پیونک وارز لڑی گئے۔ پہلے 2 وارز کے بعد روم نے ویسٹرن میڈیٹرینین کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں اسپین اور سسلی کا آئلینڈ بھی شامل تھا۔ اس دوران روم نے کارتیج کے لیجنڈری جنرل اور ملٹری ٹیکٹیشین ہینیبل کو بھی ہرا دیا تھا۔ ہینیبل کی کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ اس پر ایک الگ ہی ویڈیو بن سکتی ہے۔ 149 اور 146 BC کے بیچ 3rd پنک وار لڑی گئی اور اس میں روم نے کارتیج کو بہت بری طرح ہرا دیا۔ وار جیتنے کے بعد روم نے پہلے تو کارتیج میں جم کر لوٹ پاٹ کی، پھر پورے شہر کو جلا کر ڈسٹروئی کر دیا۔ گریک ہسٹورین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3rd پیونک وار میں کارتیج کے قریب 2 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی اور جو 50,000 لوگ زندہ بچے انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس کے بعد روم نے ایسٹ کی اور اپنا ایکسپینشن شروع کیا۔
सबसे पहले मुसदोनिया किंगडम को हराया जो अल्कजेंडर द ग्रेट के मरने के 200 साल बाद भी एक माइटी किंगडम था। रोम को इसकी मिलिट्री विक्ट्रीज ने न सिर्फ नई टेरिटोरीज और सुना दिया बल्कि इन जीते हुए राजों के कल्चर और सोसाइटी का भी रोम पर गहरा असर पड़ा। लेकिन जैसे जैसे रोम बड़ा होता गया इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिखने लगे, जैसे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और सियोल वॉर्स होने लगे। जो भी लीडर्स गरीबूहे के लिए आवाज उठाते उनको इसिनेट कर दिया जाता, जिसके बाद दूसरे लीडर्स गरीबूहे की मदद करने से डरने लगे। कुछ लीडर्स ने पॉलिटिकल चेंज के लिए वायलेंट तरीके भी अपनाए लेकिन उनको भी मार दिया गया। इसके बाद रिपब्लिक बहुत अनस्टेबल हो गया और फिर से सियोल वॉर्स शुरू हो गए। ऐसे सिचुएशन में अक्सर डिक्टेटरियल लीडर्स फायदा उठाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ और रोम को मिला अपना सबसे बड़ा डिक्टेटर। साल था 58 बीसी। रोम ने जूलियस सीजर को इटली के एक प्रोविंस का गवर्नर बनाया और गाल के बचे हुए रीजन्स को जल्दी से अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी दी। गाल एक सिलेटक लोगों की ट्राइब थी जो आज के फ्रांस, बेल्जियम और सोवियत जर्मनी के कुछ हिस्सों में आता था। लेकिन गाल पर कब्जा करना सीजर के लिए आसान नहीं होने वाला था क्योंकि गाल एक इंडिपेंडेंट ट्राइब था और उनको किसी के रूल के अंदर होना बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो उन्होंने वर्शिंगेटवर्क्स को अपना लीडर चुना और सीजर के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए। इस जंग को गीलुक वॉर्स कहा जाता है जो 58 बीसी में शुरू हुई और अगले 6 साल तक चलती रही। 52 बीसी में सीजर ने गाल की एक परमिक सिटी अलीजा को महीनों तक घेर के रखा, जिससे गाल के लोग भूख से मरने लगे और जो लोग बच्चे थे उन पर हमला करके मार दिया। इस बैटल को जीतने के बाद ये कहा जा सकता है कि सीजर ने वार भी जीत ली। बायोग्राफर प्लूटार्क लिखते हैं कि इस वार में सीजर और उसकी आर्मी ने 30 लाख गालिस के खिलाफ जंग लड़ी और उनके 10 लाख लोगों को मार दिया और 10 लाख लोगों को गिलुम बना लिया। गाल के कुनक्विस्ट ने सीजर को रोम में काफी पॉपुलर बना दिया। सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर से सेनेट में इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। इसी वजह से सेनेट ने सीजर को अपने मिलिट्री कुनक्विस्ट खत्म कर गाल से वापस आने के ऑर्डर्स दिए और उसके जवाब में सीजर ने जो किया वो पूरे रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को बदलने वाला था। सीजर ने सेनेट के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया। इसके बाद सीजर ने 2 और रोमन जनरल्स गिनुस पुम्पोस मग्नस और मार्कोस लेसिनुस कर्सस के साथ एक अलायंस फॉर्म किया जिसे ट्रामवारट के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोम्पी सीजर का दामाद था। ट्राइमोरेट की पॉपुलैरिटी रोम में इतनी बढ़ गई कि ये तीनों मिलकर रोम की पॉलिटिक्स और नीरट्व को कंट्रोल करने लगे। कुछ समय तक सीजर के लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था, लेकिन फिर हर पॉलिटिकल अलायंस की तरह ट्राइमोरेट में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सबसे पहले करासस ने सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर कुछ ऐसा करना चाहा कि इसकी पॉपुलैरिटी भी सीजर के बराबर हो जाए। इसी चक्कर में 53 बीसी में कर्सस ने पारथियान एम्पायर के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, लेकिन वो ये बैटल हार गया जिसमें इसकी मौत हो गई। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि कर्सस को कैप्चर किया गया और उसके मोहे में पिघला हुआ सोना डाला गया। कर्सस की डेथ के बाद अब सीजर और पोम्पी के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। सीजर को हराने के लिए पोम्पी ने रोमान सेनेट से हाथ मिला लिया उसके बदले सेनेट को सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी के खिलाफ एक चेहरा मिल गया जो इसे टुकर दी सके। 49 बीसी में सेनेट की वार्निंग्स के बावजूद सीजर रोम की तरफ अपनी आर्मी लेकर बढ़ा और रूबिकॉन रिवर को पार किया। बेसिकली सीजर को अपनी पावर दिखानी थी। इस एक्सट्रीम एक्शन की वजह से सेनेट और पोम्पे के खिलाफ सीजर की सियोल वार शुरू हो गई, जिसको सीजर सियोल वार कहा जाता है। 1 साल तक ये वार चलता रहा और अल्टीमेटली 48 बीसी में सीजर की फोर्सेज ने पोम्पे की आर्मी को बैटल ऑफ फार्सल्स में हरा दिया, जिसके बाद पोम्पे को एजपेट भागना पड़ा, जहां इसे किंग टूलमी ने धोखे से मरवा दिया ताकि इसे सीजर का सपोर्ट मिल सके। इसी के साथ अब रोम का पूरा कंट्रोल सीजर के पास आ गया। मौका का फायदा उठाते हुए सीजर ने अपने आप को रोम का डिक्टेटर फॉर लाइफ गेवश्त कर दिया। इस स्पीकर 11:09 सीजर की रोम पर तानाशाही 49 बीसी से लेकर 44 बीसी तक चली। इस 5 साल के सीजर के रूल के दौरान रोम काफी डेवलप भी हुआ। इसने कई रिफॉर्म्स लाए जिससे गरीब लोगों को भी फायदा हुआ। पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और बिल्डिंग्स ने सीजर की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया। लोगों को लगने लगा था कि सीजर उनके लिए एक मूसा बनकर आया है। इसे एक डेमीगॉड की तरह फॉलो किया जाने लगा। हालांकि सेनेट ने सीजर को ऑफिशियली डिक्टेटर मान लिया था, फिर भी सेनेट में कुछ लोग उसके खिलाफ थे और वो रोम से डिक्टेटरशिप हटाकर वापस रिपब्लिक बनाना चाहते थे। इसमें सीजर के करीबी साथी गासक के सीस लांगन्स और मार्क्स जूनियस ब्रूट्स भी शामिल थे, जिनको लग रहा था कि सीजर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इवेंचुअली उन दोनों ने कुछ और सेंटर्स के साथ मिलकर सीजर को इसिनेट करने का प्लान बनाया। मार्च 1544 बीसी के दिन सेनेट
की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें सीजर भी शामिल था। कुछ सेंटर्स ने एक पिटीशन दिखाने के बहाने सीजर को घेर लिया और अचानक से सीजर पर चाकू से अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीजर को लगातार 30 बार सेटअप किया गया। हमले के बीच में सीजर की नज़र ब्रूट्स पर पड़ी जिसे वो अपना बेटा मानता था, जिसके बाद सीजर ने कहा ए टू बरवट, मतलब तुम भी ब्रूट्स, जो कि इसके लास्ट वर्ड माने जाते हैं। असिस्टस को लगा कि वो सीजर को मार कर पावर अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन सीजर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि रोम के सारे सिटीजन सेनेट के खिलाफ खड़े हो गए। सीजर की मौत ने रोम को एक बार फिर सियोल वार में धकेल दिया। यहाँ पर एंट्री होती है सीजर के ग्रांड नेफ्यू इक्टिवेन की, जिसे सीजर ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। इक्टिवेन ने सीजर के करीबी दोस्त मार्क उंटनी और लेपिडस के साथ सेकंड टर्म वेट बनाया और सेनेट के खिलाफ जंग छेड़ दी। 42 बीसी में बैटल ऑफ फिलिपे में तीनों ने सेनेट को हराकर पावर हासिल कर ली। इसके बाद वेस्ट रोमन एम्पायर का कंट्रोल इक्टिवेन को दिया गया। मार्क आंटोनी ने ईस्ट को कंट्रोल किया और लेपिडस को नॉर्थ अफ्रीका दिया गया, लेकिन बाद में इक्टिवेन ने लेपिडस को साइड लाइन कर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कुछ सालों तक इक्टिवेन और मार्क आंटोनी ने मिलकर रोम पर हुकूमत चलाई, लेकिन ये अलायंस भी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सका। जब मार्क आंटोनी ईस्ट रोमन एम्पायर को रूल कर रहा था तभी इसकी दोस्ती हुई क्लियोपेट्रा से और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक समय पर क्लियोपेट्रा का सीजर के साथ अफेयर था और दोनों का एक बेटा भी था। ये सुनकर इक्टिवेन को लगने लगा कि अब मार्क एंटोनी दूसरे अलायंसेस बनाकर अपनी पावर को बढ़ाने का प्लान कर रहा है। इसके बाद दोनों के बीच अब ट्रस्ट इश्यूज होने लगे और इक्टिवेन ने मार्क आंटोनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये कहकर के मार्क आंटोनी अब क्लियोपेट्रा को रोम की क्वीन बनाना चाहता है और वो रोमन उसूलों को भूल गया है और इवनिचली इसे गिदर गेवश्त कर दिया। जवाब में मार्क आंटोनी ने इक्टिवेन की लिजिटिमेसी को क्वेश्चन किया और कहा कि रोम पर उसका कोई क्लेम नहीं क्योंकि वो सीजर का असली बेटा नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच जंग शुरू हो गई और काफी बैटल्स के बाद 31 बीसी में बैटल ऑफ एक्टीन हुई, जिसमें इक्टिवेन की नेवल फोर्सेस ने एंटोनी और क्लियोपेट्रा की फ्लैट को हरा दिया, जिसके बाद दोनों एजपिट भाग गए, लेकिन इक्टिवेन ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा और अपनी आर्मी भेजकर उन्हें 1 साल तक घेर के रखा। फिर 30 ईस्वी में एंटोनी और क्लियोपेट्रा ने हार मान ली और दोनों ने इत्मातिया कर ली। इसके बाद इक्टावेन को रोम का पहला एम्परर गेवश्त किया गया और उसने अगस्टस का नाम अपना लिया और इसी के साथ शुरुआत हुई रोमन एम्पायर की। अगस्टस का रूल 41 साल तक चला और इस पीरियड को पैक्स रोमिना यानी रोमन पेस कहा जाता है। अगस्तिस से पहले रोम में कोई ना कोई युद्ध पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती ही रहती थी और लोग इससे तंग आ चुके थे। इस वजह से अगस्तिस के सत्तर शासन को लोगों ने बहुत पसंद किया। अगस्तिस एक बहुत ही कीपीबल एम्परर था। इसने अपने एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट्स रू के कई प्रोग्रेसिव लॉज लाए और आर्किटेक्चर पे भी फोकस किया। ये डिसीशंस अगस्तिस को बाकी रोमन एम्पायर से अलग करते हैं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ज्यादातर रोमन एम्प्रेस यश थे और रूल करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। साल 14 एडी में 75 साल की उम्र में अगस्तिस की नेचुरल कारणों से मौत हो गई। अगस्तिस के मरने के बाद इसे एक भगवान माना जाने लगा और ये बल्फ रोमन एम्पायर के अंत तक चला, यहाँ तक कि जो अगस्त महीना है वो भी अगस्तिस के नाम पर ही रखा गया है। अगस्तिस के बाद इसके अडॉप्टेड बेटे तिबिरेस ने 22 साल तक रूल किया। तिबिरेस का रूल वही दौर था जब जीसस क्राइस्ट को क्रोसिफाई कर दिया गया। तिबिरेस के मरने के बाद एम्परर बनने की बारी आई इसके अडॉप्टेड बेटे कुलिगोला की, जो एक पागल और करोल एम्परर के रूप में जाना जाता है। कुलिगोला कई बेगुनाह लोगों को कांस्पिरेसी के आरोप में मरवा देता था। इस पागलपन से पूरा सेनेटक्सी में था। इसी तरह कुलिगोला की हुकूमत 3 साल तक चलती रही और फिर 41 एड में एक दिन जब कुलिगोला अपने लंच के लिए एक अंडरग्राउंड पासेज से जा रहा था तब 2 गार्ड्स ने इसका मर्डर कर दिया। हालांकि ये कभी नहीं पता चल सका कि किसने करवाया। कुलिगोला की मौत के बाद उसके चाचा क्लोडेविस को एम्परर गेवश्त कर दिया गया। क्लोडेविस का शासन 13 साल तक चला। कहा जाता है कि क्लोडेविस खाने का बहुत शौकीन था और ज्यादातर वक्त आइश में बैठता था। उसकी कई वाइव्स थीं, जिनमें से एक थी अगरपीना, जिसने इसे पॉइजन देकर मार दिया और अपने नाजायज बेटे नेरो को एम्परर बना दिया। नेरो के रूल को रोमन एम्पायर पर सबसे बड़े दाग की तरह देखा जाता है। जून एडी में 16 साल के उम्र में एम्परर बनने के बाद नेरो ने ऐसी कुछ चीजें की जिसने लोगों को हैरान कर दिया। नेरो ने सबसे पहले अपनी ही मां को मार दिया क्योंकि वो इसे बहुत कंट्रोल करने लगी थी। इसके बाद इसने ट्रीजरी को फजूल खर्चों से खाली कर दिया, जिससे किंगडम में भारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई और जिसने भी इस एक्शन पर सवाल उठाया इसे मार दिया। बायोग्राफर सुविटूनेस नेरो के बारे में लिखते हैं
कि नेरो हर तरह के बुरे काम करता था, जैसे इंसिस्ट, एनिमल क्रूरटी और बनाबात के लोगों को मार देना। फिर एक दिन अल्जिडली नेरो ने पूरे रोम में आग लगवा दी और उसका ब्लेम क्रिश्चियंस पर डाल दिया, क्योंकि इस समय क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर के लिए एक थ्रेट की तरह देखा जाता था। तो इसी फायर इंसिडेंट से एक फेमस कोट निकली जो आज भी लोग डिक्टेटर्स के लिए यूज करते हैं, नेरो फिडलेड वैन रोम बर्नड। हालांकि इसका कोई प्रॉपर एविडेंस सोर्स नहीं है कि नेरो ने ऐसा किया था। वैसे भी फिडलेट तो नेरो के मरने के 1000 साल बाद बनाया गया था, तो इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेरो के एनिमीज ने ही ये स्टोरी मैन्युफैक्चर की हो इसे डिफेम करने के लिए, जो भी हो। लेकिन इस समय पे रोम में आग लगी, इसके एविडेंसेस हैं, और इस इंसिडेंट के बाद रोम के लीडर्स का पेशेंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। मौके का फायदा उठाकर स्पेन के गवर्नर सर्वेस सिल्पिसिस गालिबा ने नेरो को थरवन के लिए चैलेंज किया। गिल्बा के लिए बढ़ते सपोर्ट को देखकर नेरो को समझ आ गया कि अब इसका रूल खत्म होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए इसे रोम से भागना पड़ा, और उसके बाद सेनेट ने नेरो को एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया। पकड़े जाने और पब्लिक एग्जीक्यूशन की शर्म से बचने के लिए नेरो ने 30 साल की उम्र में अपनी जान ले ली। क्योंकि नेरो का कोई ऑफिशियल औलाद नहीं था, इसलिए जूलियो क्लोडियन डायनेस्टी, जो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आगस्तिस के सिम्मे से चली आ रही थी, वो नेरो के साथ ही खत्म हो गई। नेरो की मौत के बाद अगला साल ऑफ द फॉर अलिफाम्प्रस के नाम से जाना गया साल था 69 ईस्वी। सेनेट के बेकिंग के साथ गालिबा को एम्परर चुना गया। देखा जाए तो गालिबा नेरो से कुछ कम नहीं था। गालिबा ने अपने करप्ट दोस्तों के फायदे के लिए रोमन आर्मी का पेमेंट कुछ समय तक रोक दिया, जिस की वजह से आर्मी में फिर से रिवोल्ट्स शुरू हो गए। लवर जर्मनी के रोमन लीजियन ने जनरल आउलोस विटिलेविस को अपना एम्परर गेवश्त कर दिया, लेकिन इससे पहले कि फिर से सियोल वार होती, गिल्बा के प्रिटोरियन गार्ड यानी इसके बॉडीगार्ड्स ने गिल्बा को मार डाला। ये दूसरी बार था जब एम्परर के बॉडीगार्ड्स ने अपने ही एम्परर को इसनेट किया। जनरल आउलोस विटिलेविस एम्परर बनने का एक बड़ा दावेदार था, लेकिन सेनेट ने अपने ही एक सेनेटर ओथू को एम्परर बनाया, क्योंकि सेनेट में वो काफी इन्फ्लुएंशियल था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओथू भी गिल्बा का सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसके खिलाफ हो गया। ओथू की इमेज एक पीसफुल और अच्छे लीडर की थी। थरवन पर बैठते ही इसके सामने विटिलेविस और उसके मिलिट्री से डील करने का एक बड़ा चैलेंज था। ओथू एक पीस सेटलमेंट चाहता था, लेकिन विटिलेस को ना शांति से मतलब था और ना ही वो अपनी एम्परर बनने की एम्बिशन को छोड़ने वाला था। फिर दोनों की आमेज के बीच एक लंबी लड़ाई चली, लेकिन ओथू की आर्मी को बेड्रियाकम की बैटल में भिनुक्कर हार का सामना करना पड़ा। रोमन हिस्टोरियन और सेनेटर केसिस डेव ने लिखा कि इस दिन बैटलफील्ड पर 40,000 रोमन सोल्जर्स की मौत हुई थी। जब ओथू को ये पता चला तो उसने इस लड़ाई को अपनी तरफ से रोक दिया। हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर वो कंटिन्यू करता तो वो जीत सकता था, लेकिन ओथू अपने सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, और फिर हजारों सोल्जर्स की मौत का सदमा इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। ये काफी अफसोस की बात है कि ओथू का रूल सिर्फ 3 महीने तक चला, क्योंकि अगर इसे मौका मिलता तो वो एक काफी संवेदनशील और अच्छा एम्परर होता। जहां रोमन एम्परर ज्यादातर नार्ससट और ग्रेडी हुआ करते थे, वहां ओथू का नाम हमेशा एक ईमानदार एम्परर के तौर पर लिया जाता है। ओतो की मौत के बाद विटिलेविस अपनी आर्मी के साथ रोम पहुंचा, और उसके सोल्जर्स ने सबसे पहले तो रोम के लोगों को मारा और लूटा, और औरतों को भी नहीं बख्शा। और फिर सेनेट ने हार मान कर विटिलेविस को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। विटिलेविस को अगर 100% कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसने अपने आप को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया और एक डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने लगा। आम लोगों पर जुल्म बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि रोम एक डार्क एज में जा चुका है। अब रोम को एक सीवीर की जरूरत थी, जो इसको जल्दी मिलने वाला था। रोमन आर्मी के हिस्से ने अचानक रियोलट शुरू कर दिया और अपने कमांडर टाइट्स फुल्लिवेस विसिपिज़ेन को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। फिर एक लंबी वार चली और आखिर में विसिपिज़ेन की आर्मी रोम में घुस गई। जब विटिलेविस को ये समझ में आ गया कि वो जंग हार रहा है, तो इसने शहर से छपकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और उसको घसीटकर रोम के लोगों के बीच लिया गया, जहां इस पर लोग थूकने लगे। फिर इसे बुरी तरह टॉर्चर करके मार दिया गया और उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया गया। दिसंबर 69 AD को सेनेट ने विसिपिज़ेन को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। ये एक लंबे पीरियड के रोमन तुर्मोल का अंत था और एक नए पीसफुल और खुशहाल रोमन एम्पायर के दवार की शुरुआत हुई, जिसे फुल्लिवेन डायनेस्टी के नाम से जाना गया। वेस्पेशियन के रूल
में कालवसीम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो कि आज भी दुनिया का एक सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। विस्पेशियन एक इंटेलिजेंट और अच्छा पॉलिटिशियन था। इसने लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर किया और रोम के एलिट क्लास और कॉमन सिटीजन्स दोनों का ख्याल रखा। इसने सेनेट की पावर को पूरी तरह रेस्टोर किया और कई रिफॉर्म्स एनिकेट किए जो पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करते थे। विस्पेशियन का रूल लगभग 10 साल चला और उसके मरने के बाद इसका बेटा टाइटस एम्परवर बना, जो पहला बायोलॉजिकल बेटा था किसी भी रोमन एम्परवर का जिसने अपने पत्ता को सक्सेड किया। टाइट के बाद इसके भाई डवमिचियन एम्परर बना, लेकिन इसे स्नट कर दिया गया। इसके बाद 96 एडी से 92 एडी के पीरियड को द ईरा ऑफ द गॉड एल्फाम्पर्स कहा जाता है। इस पीरियड में ट्रीजिन को इसके लोगों ने सबसे अच्छा एम्परर माना। इसी दौरान रोम 1 मिलियन लोगों वाला शहर बना और एम्पायर का एरिया अपने इतिहास का सबसे हाईएस्ट नंबर पर पहुंचा। रोम ने नए रीजन को रोड्स के जरिए कनेक्ट किया। ये सिस्टम अभी तक यूरोप की ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करता है। ट्रीजिन की रूल के बाद एम्परर हिडरेन ने डिफेंस को स्ट्रोंग किया, बर्टन में बड़ी बड़ी फोर्ट्स बनाए और रोम में पांथियोन बनवाया। पांथियोन के अंदर हिडरेन ने अपने लूर इंटोन्स की पेंटिंग्स भी बनवाई, जो आज भी देखी जा सकती हैं। लास्ट गॉड एम्परर माने जाने वाले फिलोसोफर मार्कस आव्रेलियस ने अपना ज्यादातर टाइम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स में बिताया। बैटल्स के बीच में इसने अपनी सटुका फिलोसफी का मैनिफेस्टो मेडिटेशंस लिखा। मार्कस आव्रेलियस के बाद इसके बेटे कोमोडस के अंदर आखिरकार पैक्स रोमाना का अंत्य हो गया। कोमोडस को अपने काम से ज्यादा गुल्टर की फोर्ट्स पसंद थी। इवनिचली कमोडस के कुछ दुश्मनों ने इसे एक फाइटर और सलेव नारसस से गल्ला दबाकर स्किनेट करवा दिया। इसके बाद रोम फिर से कास में डूब गया। अगले 100 साल रोमन एम्पायर काफी अनस्टेबल रहा। इस पीरियड के दौरान 25 से ज्यादा एल्फाम्पर्स आए और उनमें से लगभग सभी को स्किनेट कर दिया गया। एक बार तो प्रेटोरियन गार्ड ने एल्फाम्परर को मार दिया और नेक्स्ट एम्परर की पोस्ट को ऑक्शन पर लगा दिया। कई एल्फाम्पर्स ऐसे भी थे जिनका रूल सिर्फ कुछ दिन हफ्तों तक ही चल पाया। कुछ की रेन का इक्जिकेट डोरेशन अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन सबसे छोटी रेन का रिकॉर्ड गार्डियन 2 के पास है, जो लगभग 22 दिन का था। डिविक्लेशन जो इस टाइम का एम्परर था, इसने रोमन एम्पायर को ठीक से मुंज करने के लिए इसे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर इसने एक सिस्टम बनाया जिसमें एक एम्परर वेस्ट को रूल करता था और दूसरा ईस्ट को, और दोनों को आगस्तिस के टाइटल से बुलाया जाने लगा। और उन दोनों के अंदर एक एक डिपट्टी एल्फाम्पर्स थे जिनको सीजर का टाइटल मिला, इसलिए इस पीरियड को टेट्रार्की का नाम दिया गया। फिर 305 एड में डाविक्लेशन ने एक काफी रेयर चीज की, इसने थर्वन को खुद ही गिव अप कर दिया और ऐसा करने वाला वो पहला रोमन एम्परर बना। इसके बाद डाइक्लेशन के को रूलर और वेस्टर्न एम्पायर के एम्परर मैक्सिमन ने भी रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद वेस्टर्न एम्पायर के सीजर के बेटे कांस्टेंटाइन को वेस्टर्न एम्पायर का एम्परर अपॉइंट किया गया और उसको दोनों आंगुस्टस और सीजर का टाइटल दे दिया गया। लेकिन मैक्सिमन के बेटे मैक्सिंटीस ने डिमांड किया कि इसको सीजर का टाइटल दिया जाए। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सिंटीस के बीच वार शुरू हो गई। माना जाता है कि वार से पहले कॉन्स्टेंटाइन को आसमान में क्रॉस दिखाई दिया और उसको लगा कि ये गॉड की तरफ से इसके लिए साइन है जिससे अपना कर वो जीत सकता है, और फिर इसने अपने फुल्लीगस और आर्मी के बैनर्स पर क्रॉस को पेंट करवाया। इस वार में कॉन्स्टेंटाइन की जीत हुई और मैक्सिंटीस को मार दिया गया। वार जीतने के बाद कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को एक्सपेक्ट कर लिया और अपने एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। कॉन्स्टेंटीन का रूल 357 एडी तक चला और उसके मरने के बाद इसके 3 बेटों के बीच पावर स्ट्रगल हुआ, लेकिन कोई भी थर्वन पर टुक नहीं पाया। इसके बाद 363 ईस्वी में वेलनटीनैन डेनिसिटी आई, जिसमें पावर स्ट्रगल्स इसनेशंस और अनस्टेबल रूल था। 392 ईस्वी में वेस्ट के एम्परर वालनटीनैन 2 की मौत के बाद ईस्ट के एम्परर थियोडोसिस I ने दोनों एम्पायर्स को फिर से यूनाइट कर दिया, लेकिन ये यूनाइटेड रोमन एम्पायर्स ज्यादा समय तक नहीं रहा। थियोडोसिस की मौत के कुछ साल बाद इसके दोनों बेटों आर्केडियस और ओनोरेस के बीच रोम का फाइनल बंटवारा हो गया। आर्केडियस के अंडर ईस्ट था, जो आगे चलकर बीजेंटाइन एम्पायर बना, और होनोरेस के अंदर वेस्ट था, जिसका बहुत जल्द अंत होने वाला था। धीरे धीरे ग्रेग बोलने वाला बीजेंटाइन एम्पायर अमीर होता गया, जबकि लैटिन बोलने वाला वेस्टर्न एम्पायर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गया। बीजेंटाइन एम्पायर की दौलत ने अपने फोर्टिफिकेशन को मजबूत बनाया। जब इन्वेडर्स ने कांस्टेंटिनोपल की ताकत और रोम की कमजोरी को देखा तो उन्हें वेस्ट को अटैक करना ज्यादा आसान लगा। इस दौरान एक जर्मनिक ट्राइब गोटस ने बार बार वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर हमला किया। एक और ट्राइब ओइंडल्स ने 455 एडी में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। 476 एडी तक वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
सबसे पहले मुसदोनिया किंगडम को हराया जो अल्कजेंडर द ग्रेट के मरने के 200 साल बाद भी एक माइटी किंगडम था। रोम को इसकी मिलिट्री विक्ट्रीज ने न सिर्फ नई टेरिटोरीज और सुना दिया, बल्कि इन जीते हुए राजों के कल्चर और सोसाइटी का भी रोम पर गहरा असर पड़ा। लेकिन जैसे जैसे रोम बड़ा होता गया, इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिखने लगे, जैसे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और सियोल वॉर्स होने लगे। जो भी लीडर्स गरीबूहे के लिए आवाज उठाते उनको एसिसिनेट कर दिया जाता, जिसके बाद दूसरे लीडर्स गरीबूहे की मदद करने से डरने लगे। कुछ लीडर्स ने पॉलिटिकल चेंज के लिए वायलेंट तरीके भी अपनाए, लेकिन उनको भी मार दिया गया। इसके बाद रिपब्लिक बहुत अनस्टेबल हो गया और फिर से सियोल वॉर्स शुरू हो गए। ऐसे सिचुएशन में अक्सर डिक्टेटोरियल लीडर्स फायदा उठाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ और रोम को मिला अपना सबसे बड़ा डिक्टेटर। साल था 58 BC। रोम ने जूलियस सीजर को इटली के एक प्रोविंस का गवर्नर बनाया और गाल के बचे हुए रीजन्स को जल्दी से अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी दी। गाल एक सिलेटक लोगों की ट्राइब थी जो आज के फ्रांस, बेल्जियम और सोवियत सरलैंड जर्मनी के कुछ हिस्सों में आता था। लेकिन गाल पर कब्जा करना सीजर के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि गाल एक इंडिपेंडेंट ट्राइब था और उनको किसी के रूल के अंदर होना बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो उन्होंने वर्शिंगेटवर्क्स को अपना लीडर चुना और सीजर के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए। इस जंग को गीलुक वॉर्स कहा जाता है, जो 58 BC में शुरू हुई और अगले 6 साल तक चलती रही। 52 BC में सीजर ने गाल की एक परमिक सिटी अलीजा को महीनों तक घेर के रखा, जिससे गाल के लोग भूख से मरने लगे और जो लोग बच्चे थे उन पर हमला करके मार दिया। इस बैटल को जीतने के बाद ये कहा जा सकता है कि सीजर ने वार भी जीत ली। बायोग्राफर प्लूटार्क लिखते हैं कि इस वार में सीजर और उसकी आर्मी ने 30 लाख गालिस के खिलाफ जंग लड़ी और उनके 10 लाख लोगों को मार दिया और 10 लाख लोगों को गिलुम बना लिया। गाल के कुनकुइस्ट ने सीजर को रोम में काफी पॉपुलर बना दिया। सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर से सेनेट में इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। इसी वजह से सेनेट ने सीजर को अपने मिलिट्री कुनकुइस्ट खत्म कर गाल से वापस आने के ऑर्डर्स दिए और उसके जवाब में सीजर ने जो किया वो पूरे रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को बदलने वाला था। सीजर ने सेनेट के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया। इसके बाद सीजर ने 2 और रोमन जनरल्स गिनुस पुम्पोस मैग्नस और मार्कोस लेसिनुस कर्सस के साथ एक अलायंस फॉर्म किया, जिसे ट्रामवारट के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोम्पी सीजर का दामाद था। ट्राइमोरेट की पॉपुलैरिटी रोम में इतनी बढ़ गई कि ये तीनों मिलकर रोम की पॉलिटिक्स और नीरेटिव को कंट्रोल करने लगे। कुछ समय तक सीजर के लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था, लेकिन फिर हर पॉलिटिकल अलायंस की तरह ट्राइमोरेट में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सबसे पहले करासस ने सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर कुछ ऐसा करना चाहा कि इसकी पॉपुलैरिटी भी सीजर के बराबर हो जाए। इसी चक्कर में 53 BC में कर्सस ने पारथियान एम्पायर के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, लेकिन वो ये बैटल हार गया, जिसमें इसकी मौत हो गई। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि कर्सस को कैप्चर किया गया और उसके मोहे में पिघला हुआ सोना डाला गया। कर्सस की डेथ के बाद अब सीजर और पोम्पी के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। सीजर को हराने के लिए पोम्पी ने रोमान सेंट से हाथ मिला लिया।